Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. So, what's up, students? As we know, our online classes are going on and we have to prepare for our exams also. So, as we know, schools are not going to open for the certain time period. So, due to this pandemic situation, we are not going to school also and it is not going to open for a time period. So, now we have to learn through online classes. So we have to learn here on the online classes, and through this video also you can learn better, or you can make your learning more effective. So let us see what we are going to learn today. Yes, of course, as you can see, our topic is given here, the cherry tree. So the cherry tree is written by the poet Ruskin Bond. So what is given in the cherry tree? So let us see here. Actually, this chapter is about a boy who planted a seed. So what seed he has planted? He has planted a cherry seed. So what happens throughout the story or throughout the chapter, we will read and we will learn what actually happened here in this chapter. Why the name of the chapter is the cherry tree. Okay, so before starting the chapter, do you know there are different kinds of fruits available in the market? So, do you know from where we get these fruits to eat, or those fruits are available in the market? So, if you will notice, like cherry, strawberry, apricot, almond, so where these trees are found? So basically these trees are found in the cold regions, okay, cold regions of the hills and mountains. And here, have you seen the apple tree around us? No, we have not seen, because they need some climatic condition to grow properly. So you have seen in our area, especially mango tree is there, guava, papaya, and pomegranate, and many more trees we can find. But some specific trees are there which are grown on the climatic condition. They need climate to grow it properly. So you have observed this kinds of trees we are not able to find in our area. Okay, so now let us read a story. Here the story is given about a little boy who planted a cherry in his garden. Okay, so let us start. What is given in this chapter? Rakesh lived with his grandfather in Missouri. One day he bought some cherries on his way back from school. He ate them as he walked home. There were 3 left by the time he reached home, and his grandfather took one and ate the other 2, rolling the taste round and round in his mouth till it was tasteless. Okay, so in this first page we have seen a picture of a boy. ओके, सो इस पेज में हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर में एक बॉय है. सो हिज नेम इज़ राकेश. यहाँ पे एक जो लिटिल बॉय है उसका नाम राकेश है, जो अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी में रहता है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड वन डे. एक दिन क्या हुआ? ही बॉट सम चेरीज. उसने कुछ चेरीज खरीदी. ओके, द चेरीज वर लिटिल सार, स्मॉल, ब्राइट, रेड चेरीज. सो जो चेरीज थी बहुत ही स्वीट थी, ब्राइट थी, छोटी छोटी थी, और दे वर ब्राइट इन रेड इन कलर. सो उनका जो कलर था बहुत ही ब्राइट और रेड था. सो पूरे रास्ते अपने वो चेरी खाते हुए जा रहा था, और जब वो घर पहुंचा तब उसके पास सिर्फ 3 चेरीज़ थी. तो उसने अपनी चेरीज़ को अपने ग्रैंडफादर के साथ शेयर किया. सो हिज ग्रैंडफादर हैज़ टेकन 1 चेरी. उसके ग्रैंडफादर ने 1 चेरी ली और 2 चेरी अभी भी बाकी थी. तो राकेश ने उसे एकदम प्रॉम्प्टली ही हैड टेकन द 2 चेरीज. उसने बहुत ही जल्दी से दोनों चेरी को अपने मुंह में डाल लिया. एंड ही हैज़ टेकन द टेस्ट एंड इट्स फ्लेवर. जैसे कि हम कुछ खाते हैं खट्टी मीठी चीज़ें, तो हम अपने माउथ में रख के उसका फ्लेवर इन्जॉय करते हैं, उसके स्पाइसेस इन्जॉय करते हैं कि वो कितना टेस्ट है. तो हम उस चीज़ को जब तक चबाते हैं या जब तक खाते हैं जब तक कि उसका
टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता है, वो टेस्टलेस नहीं हो जाता है. Okay, now this is given in the first chapter. Let us move towards the second page of this chapter. Okay, now when he had eaten the cherries, अब जब उसने पूरी चेरीज खा चुकी हैं, वह चेरीज को अपने हाथ के पाम में निकालता है. पाम मीन्स हथेली. अपनी हथेलियों में उन चेरी के सीड्स को रखता है. एंड ही स्टडीड प्रॉपरली. वो बहुत ध्यान से उन्हें देखता है. एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू हिज ग्रैंडफादर. So he asked his grandfather whether the seed would bring him luck. क्या चेरी का जो सीड है क्या उसके लिए लकी साबित हो सकता है? क्या उसके लिए वह लक ला सकता है? His grandfather told him that for any sort of luck it must be put to good use. उसके दादा बोलते हैं, राकेश के दादा बोलते हैं, लक वगैरह कुछ नहीं होता है, बट जब आप इस चीज़ को आप यूज़ करते हो तो वह आपका गुड लक होता है. सो इट हैपन्स मैनी टाइम्स नो. कभी कभी हम बोलते हैं कि दिस रेड कलर इज़ माई लकी कलर, 2 नंबर इज़ माई लकी नंबर, ओके, माई मॉम इज़ वेरी लकी फॉर मी, माई फ्रेंड इज़ लकी फॉर मी. सो वॉट इज़ दिस लक? क्या ये सचमुच में हमारा लक होता है, लकी होते हैं? सो होते तो हैं, बट व्हेन दे विल बी यूजफुल फॉर अस. Okay, when we will make the use of the person of the things, then only they are useful for us. So यहाँ पे grandfather से suggest करते हैं you make it use, तुम इसका use करो. So what he has to use? अब क्या कर सकता है राकेश? So Rakesh has planted the seed in a corner, in a shady corner, and forgot all about it. अब ये चेरी जो सीड है, चेरी का जो सीड है वह उसे एक शेडी कॉर्नर में लगा देता है, जहाँ पे छाँव आती है, जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ लगा देता है. और फिर क्या होता है, ये उसके बारे में ये भूल जाता है. ओके, सो इट हैपन्स कि हम कुछ काम करते हैं और उस काम को करने के बाद हम खुद भूल जाते हैं. सो व्हाट हैड हैपन नाउ? Winter passed and spring came. Okay, so winter passed. Winter means you know that this is one of the season. Then spring is also a season. So winter चला जाता है, अब spring का मौसम आ चुका है. One morning when Rakesh tried to pick up what he thought was a twig in the garden, he found that it was not a twig but the cherry seed that had grown into a cherry tree. ओके, अब क्या होता है, एक सुबह को जब सुबह होती है तो राकेश कोशिश करता है गार्डन में जाकर कुछ चीज़ को देखता है. वह कोशिश करता है कि वहाँ पे एक छोटा सा ट्विग यानी टहनी, छोटी सी टहनी जो होती है ना, ब्रांच, जो पेड़ों से ब्रांच टूट जाती है तो वो होता है ट्विग, छोटी छोटी डगालें. जब वो गार्डन में देखता है कि कुछ यहाँ पे ट्विग है, तो जब वो उसे नोटिस करता है तब वो पाता है कि ये ट्विग नहीं है बट ये चेरी सीड है जो उसने बहुत पहले यहाँ पे लगाया था. नाउ इट हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री, जो अब चेरी ट्री बन चुका है. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ही इज़ टॉकिंग विथ हिज ग्रैंडपा, ही इज़ टॉकिंग विथ हिज ग्रैंडपा, ही इज़ शोइंग हिम that the cherry seed has grown into a cherry tree. वह अपने दादा को बुलाता है, बताता है कि देखिए यहाँ पर जो सीड था अब वो एक चेरी ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये एक चेरी ट्री बन चुका है. Okay, now let us see towards the next page what is given here. Okay, so now it is here. Now it is a little tiny tree. Okay, अब क्या है, वो little tiny plant है जो seed से अब वो plant हो गया है. And we know that we have read in science also germination of seeds, है ना, हमने पढ़ा है साइंस में भी कि we are putting a seed into the soil. In the soil we are putting a seed. After watering the seed, after few days or after a week we can see the sprout comes out. So उसमें से देखते हैं हम कि एक बीज में से एक अंकुर निकलता है, उसकी कोपले, कोमल कोमल जो कोपले होती है ना, इट कम्स आउट, स्प्राउट्स जैसा निकलता है. एंड आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर अगेन फ्यू वीक्स, मे बी आफ्टर 4 weeks और 5 weeks इट बिकम्स अ प्लांट. अब वो एक प्लांट हो जाता है. तो व्हाट डज अ प्लांट नीड? प्लांट को क्या ज़रूरत होती है?
प्लांट को ज़रूरत होती है वाटर की, प्लांट को ज़रूरत होती है केयर की, प्लांट को ज़रूरत होती है सनलाइट की. सो वी ऑल्सो हैव रेड इन साइंस फोटोसिंथेसिस दैट plants are able to prepare their food in the presence of sunlight with the help of water and oxygen. So यहाँ पर this story is divided into two parts. So first part we have seen there Rakesh was there. He lived with his grandfather and he bought some cherries, he ate them and he put the seed into the soil to grow and it was grown into a plant, then it has a tree. Now here the second part is given. So what had happened in the second part? So already we have learnt this winter passed and spring came. So two seasons are mentioned now. अब यहाँ पे हमें दो सीजन को देख चुके हैं, है ना, कि विंटर गया, स्प्रिंग आ गई. नाउ दैट ईयर द मानसून रेन्स came early and the cherry tree grew quickly in the season. Okay, so आपको मालूम है कि nowadays this is monsoon season is going on, every day we are having rain, the weather is cold and everywhere you can find out greenery, है ना. जब भी आप चारों तरफ देखोगे अपने आपको हरियाली दिखेगी. सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रीनरी. सो अभी इस मॉनसून सीज़न में क्या होता है, जो प्लांट से बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, रैपिडली मीन्स तेज़ी से बड़े होते हैं, है ना. एवरीवेयर यू कैन फाइंड आउट द सीड्स, दैट मैंगो सीड्स यू हैव थ्रोन आफ्टर ईटिंग अ मैंगो. जो आप मैंगो खाने के बाद जो उसका सीड होता है कई फेंक देते हैं ना, डस्टबिन में चला जाता है, डस्टबिन से हम उसे बाहर फेंकते हैं, फिर वो डिस्पर्स होते जाता है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू. तो नाउ यू कैन सी द प्लांट ऑफ मैंगो ट्री ऑल्सो. ओके, मैंगो, आप मैंगो ट्री के भी प्लांट देख सकते हो कि वो भी ग्रो होते हैं इस मॉनसून के सीज़न में. एंड प्लांट्स ऑल्सो ग्रोज रैपिडली. नाउ अब क्या हुआ यहाँ पे, वन डे द चेरी ट्री ग्रू रैपिडली थ्रू द मानसून. सो मानसून के सीज़न में चेरी ट्री जो है बहुत तेज़ी से बड़ा होता है. अ गोट एंटर्ड एंड एट द लीव्स बट सून बाय द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड. ओके, नाउ व्हाट हैड हैपन. सो हियर इन दिस सेकेंड पार्ट, सो वी हैव टू लर्न वॉट हैड हैपन टू द चेरी ट्री. हमें देखना है कि यहाँ पे चेरी ट्री के साथ क्या हुआ. सो अब ये हुआ कि एक दिन एक गोट जो है एंटर कर लेती है अंदर और वो लीव्स को खा लेती है. ओके, एंड एट द लीव्स. बट क्या होता है, एंड ऑफ द रेनी सीजन, अब खा तो लिया गोट ने, है ना, तो अब क्या हुआ, रेनी सीजन में फिर से वो ग्रो हो जाता है, फिर से बढ़ने लगता है. फिर नाउ वंस अगेन वन थिंग इज हैपन. नाउ अगेन अ वुमन कटिंग द ग्रास कट द ट्री इनटू टू. अब एक वुमन होती है वहाँ पे जो घास काटती होती है, तो वह क्या करती है, वो चेरी ट्री को भी टू पार्ट्स में काट देती है. ओके, सो दिस टाइम राकेश वॉज वेरी नर्वस because when goat entered and goat ate the leaves, so anyhow grandfather managed him. But now second time this woman also she cut the grass into that cherry tree into two. So this time he was very nervous and grandfather scolded the woman also that why she did this. But that lady also didn't do this by intentionally. उसने जानबूझ के तो नहीं किया था, वो ग्रास के साथ काटते काटते वो भी कट गया. अब यहाँ पे राकेश को लगता है कि अब ये प्लांट जो है, अब ये जो ट्री है चेरी ट्री, अब ये डाई हो जाएगा, अब ये नहीं यानी कि ग्रो कर पाएगा, है ना. बट व्हाट हैड हैपन बाय द टाइम समर. अब समर आते आते क्या होता है, इट हैड सेंट सेवरल न्यू शूट्स. अब उसमें बहुत सारी शूट्स यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी कोमल कोमल पत्तियाँ आने लगी हैं, छोटी छोटी शूट्स आने लगी हैं. सो नाउ राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू. अब राकेश भी बड़ा होने लगा. ही वॉज 8 नाउ. अब वो 8 ईयर्स का हो चुका है राकेश. और ट्री भी जो चेरी ट्री है वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा है. ओके, सो व्हाट हैड हैपेंड नाउ. 4 years passed and the tree bent with the weight of snow, but by summer pink blossoms appeared.
ओके, सो नाउ अब क्या देखो, हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले विंटर सीज़न आया, फिर स्प्रिंग आया, फिर रेनी सीज़न आया, अब फिर यहाँ पे समर सीज़न है। ओके, सो अब यहाँ पे सीजन्स भी बताए जा रहे हैं हमें। यहाँ पे हमें ये भी बताया जा रहा है कि जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो क्या सरकमस्टांसेस होते हैं, क्या सिचुएशन होती है कि जिस सिचुएशन में वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। कई बार होता है कि कोई एनिमल्स खा लेते हैं उसे, कई बार होता है कि वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही कट जाते हैं या काट लिए जाते हैं या उखड़ जाते हैं, है ना। सो दिस इज़ हैपनिंग इन दिस चैप्टर ऑल्सो नाउ। बट आफ्टर 4 years हो चुके हैं, अब जो ट्री है उसका जो वेट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि बेंट, अब जो उसमें जो फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं उसकी वजह से उसका वेट जो है वो वेट की वजह से वो झुक गया है। ओके, अब उसमें न्यू पिंक ब्लॉसम्स यानी कि न्यू पिंक कलर के फूल उसमें ग्रो हो रहे हैं, आ रहे हैं। सून देयर वर मोर ब्लॉसम्स दैट अट्रैक्टेड द बीज एंड द बर्ड्स। अब जब यहाँ पे ब्लॉसम्स यानी बहुत फूल उसमें खिलने लगे हैं, ब्लॉसम्स यानी होता है खिलना, बहुत सारे जब उसमें फ्लावर्स ब्लॉसम हो रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? बीज को और बर्ड्स को। आपको मालूम है, आप साइंस में पढ़ चुके हैं, बीज कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, isn't it? And birds also eat the flowers or they eats the birds also. Birds means कलियाँ। The following summer there were cherries. अब जो ये समर आई है, जो गर्मी है, इसमें चेरीज़ जो हैं उसमें आने लगे हैं, जो ट्री है उसमें चेरीज़ उगने लगे हैं। They tasted sour. सार मीन्स खट्टा। अब उनका टेस्ट कैसा है? सार। बट ग्रैंडफादर एक्सप्लेन टू राकेश दैट दे वुड बी बेटर द फॉलोइंग ईयर। लेकिन अब यहाँ पे ग्रैंडफादर राकेश को बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसमें जो फ्रूट्स होंगे, चेरी होंगे, वो स्वीट होने लगेंगे। तो अभी तो टेस्ट उसका कैसा है? सार है। एंड ही टेस्टेड ऑल्सो। अब यहाँ पे राकेश जो है इसको टेस्ट भी करता है, बट इट वॉज टू सार। जो चेरीज होते हैं बहुत ही खट्टे होते हैं। ओके, नाउ Rakesh wondered why he found the cherry tree so special, and his grandfather told him that it was because they had planted it themselves. अब यहाँ पे राकेश को लगता है कि ये ट्री उसके लिए इतना स्पेशल क्यों है। So grandfather said here, this is because they have planted. They have planted means they both. Grandfather told him to put the seed to make its luck, and Rakesh planted that seed in the soil, and after the seeds had converted into a tree. तो यहाँ पे जो स्पेशल है इस ट्री के बारे में वो ये है क्योंकि इस ट्री को उन्होंने खुद लगाया है। राकेश wondered if what he felt was what it feels to be God. तो अब यहाँ पे वो अपने आप से बातें करता है गॉड से कि ये अब वो महसूस करता है कि क्या गॉड यही चाहते थे कि वो इस सीड को लगाए और यहाँ पे एक चेरी का ट्री हो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस chapter, the cherry tree, that how this cherry tree, what is the journey of this cherry tree, how he has grown. And Rakesh has planted this cherry tree or cherry seed with the help of his grandfather. So I hope you like this video. Do one thing beta, you share this video with your friends also, so they will also learn through this video. Thank you for watching this video. Have a nice day.